Very good evening to all of you, beta. Today we are going to start with new chapter, that is periodic table. Okay. Okay. If I tell you to do shopping, from where you will do beta shopping? Where systematically clothes are arranged? Two, na beta, right? So we'll do pick up from where? Two. Why? Because it is systematically arranged. So our shopping become easier. If I tell you to pick up the book, from where you will pick up the book? One, na beta, right? Because it is systematically arranged. So why? Acha, if you go to DMart and all, all chocolates are on one section, right? Biscuits are on one section, okay, juices are on one section. Why they do that way? Because our job will become very easy. Similarly, there are so many elements, therefore we have to arrange them in what systematic way. Therefore, there is a need for classification of element. Now, who was the first one to classify? That also I'll tell you. But earlier, how we used to classify element into metals and non-metals. नॉन मैटर। Metals and non-metal. But this classification तो ये failed. कौन सा Why? चैप्टर है? Periodic table. Why this classification failed, Veda? Because we used to have metalloids also, which show property of both. Metalloid shows property of both. And clear, right? So, okay. Now, before going to the next part, Veda, what you should know is about atomic weight. What is atomic weight? Atomic weight is mass of an atom. Mass is because of protons and neutrons. Protons and neutrons. Then what is atomic number? Atomic number is number of protons or electrons. Protons or electrons. Mass is of proton and neutron. Now earlier beta, whichever scientists came, they all arranged in the form of what beta? In the form of what? Atomic weight. They arrange the element in the increasing order of atomic weight. Who was the first scientist to classify? Toby Reiner. What was Johann Wolfgang Toby Reiner? Toby Reiner. Look, Toby Reiner. ये नाम याद रखो, डॉबरमैन, टॉबी राइनर. He arranged the element in a group of three. Chemically analogous मतलब similar element in a group of three. देख ऐसे arrange कर दिया. Lina K. He arranged them in the increasing order of what? Atomic weight. In the increasing order of atomic weight. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वृंदा, atomic weight. Atomic weight I'm increasing or not? Tell me. Here it is 7. Here it is 39. What is, and we are arranged in the group of three. Suppose beta what is said is the element का first का weight is A, last का is B, तो बीच वाले का क्या होगा? A plus B by 2. So how much it will be? 7 plus 39 by, so what I'll get? 23. So look, chemically analogous element arranged in the increasing order of their atomic weight, well marked in a group of three, called triads, in which the atomic weight of the middle element is what? Average of first and the last. Clear है? कोई भी नहीं, उसने सब पे वो फेल हो गया था. हम लोग पहले देखो बेटा, हम लोग पहले कबूतर चिट्ठी लिखे जाता था, फिर हम लोग एनवेलप पे लिखते थे, फिर टेलीग्राम, ओके, फिर बाद में कौन आया था? फोन. फिर बाद में आया था पेजर, फिर मोबाइल फोन, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ते गया ना, वैसे पीरियोडिक टेबल भी इवॉल्व होने वाला है. So, what all question they will ask? I want all of you to keep the textbook ready. In your textbook, beta, what you are going to do? Come to page number 80, 8080. 8080 में आपको हेडिंग दिखाई देगा टॉपी राइनर ट्रायड्स. क्या हेडिंग दिखाई देगा? टॉपी राइनर ट्रायड. फर्स्ट पिराना थिंग, ट्रायंगल। हाँ, फर्स्ट थिंग व्हाट दे विल आस्क. Toppy liner arrange the element in the increasing order of atomic weight, well marked in a group of three called triad. Define triads. नेक्स्ट, पहला ये पूछेगी बेटा. सेकंड क्या आपको पूछेंगे? व्हाट इज डॉबिराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड? So what is right? Chemically analogous means similar element. When they are arranged in the increasing order of their atomic weight, well marked in a group of three, then the atomic weight of the middle element is the average of other two. Clear? फिर आपको ये एग्जाम्पल बाहर करना पड़ेगा. लीना के. बस यही, बस और कुछ नहीं है. टेक्स्ट बुक इतना ही क्या. फिर ये फेल हो गया. वृंदा क्यों फेल हो गया? हाँ, नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट. क्लियर है? मार्क कर लिया टेक्स्ट बुक में. अच्छा, इसमें खाली एक चीज लिख लो बेटा. अगर ये ए है वृंदा, ये लास्ट वाला बी है, तो बीच वाला क्या होगा? वेरी गुड बेटा, इतना अच्छे से कर. तो मैं थोड़ा दुखी हो गया बेटा. हाँ, तो वही तो मैं बता ना, फॉर्मूला की वजह से. देखो अक्षय को पीछे बहुत लोगों को 35 आया था बेटा. मुझे लग रहा था तू करेगी अच्छा.
क्लियर है, ये मार्क कर लिया। ओके, मैंने आंसर की भेजा है ग्रुप में, देख लेना बेटा। तो किसको गंदा आया? किसी को गंदा नहीं आया है, कम आपने आया है। अभी तो। कम अच्छा। आया है, कम आया है, ठीक है। मतलब जिस उसको फुल आना चाहिए था, उसको 25 आया, इसलिए मैं उस पर भड़क गया। ठीक है। ओ। तूने तो दिया ही नहीं, तो तू तो बोलने का हक भी नहीं है, तो समझा ना। तो मैं दे दूंगा। दे दूंगा नहीं। चलो, अच्छा है। 1 2 3, बेटा हो गया ये। मार्क कर दिया। क्या क्या क्वेश्चन आएगा समझा ना बेटा। अच्छा, मैं तेरे यस को टीचर। एग्जाम में ऐसा दूंगा कभी। सपोज फर्स्ट एलिमेंट का एक्स है, लास्ट वाले का वाई है, तो बीच का क्या होगा, एक्स यस। प्लस वाई बाय। यस। चलो, मैंने भेजा है आंसर, हम लोग क्लास के बाद डिस्कस करते चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना बेटा प्लीज। ठीक है, मैं बताऊंगा ना, ठीक है ना। चलो देन बेटा, ये भी फेल हो गया। अभी नेक्स्ट जेंटलमैन कौन आया बोलो। अच्छा, देख अक्षय, तू पूछ रहा था ना बेटा, ये है ना सबके लिए, देख ऐसे उसने और एक एलिमेंट को ट्राई किया था। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा था, तो उसने वर्ड क्या यूज किया था, अप्रोक्सीमेट। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है। फिर ये सब में अप्लीकेबल भी नहीं हो रहा था। देख बेटा, अगर मैंने नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक लिया रहता, तो देख अक्षय क्या आंसर आ रहा था, ये 31 आ रहा था, और हम लोग एवरेज ले रहे थे तो कितना आ रहा था। तो क्या ऐसा डिफरेंस आ रहा है ना, तो फेल हो गया वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो बेटा चलो बेटा, ये फेल हो गया, ओ नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल। बरोबर है। फिर अभी कौन आएगा बोलो, न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड, देख लो बेटा, ऐसा दिखता था जॉन न्यूलैंड। उसने भी कैसे अरेंज किया, ही ऑल्सो अरेंज द बहुत एलिमेंट गंदा। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ओनली, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। उसका टेबल बेटा देखो कैसा है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आ जाओ बेटा, ये टेबल दिख रहा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखा, पेज नंबर 80 पे ही है ये। अच्छा, उसका लॉ क्या, देखिए ऑल्सो अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। उसका लॉ क्या था देख बेटा, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, दे शो रिसेम्बलेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिटवीन एट्थ एंड फर्स्ट एलिमेंट, एज इन म्यूजिकल स्केल। आप बोलेंगे ये क्या होता है म्यूजिकल स्केल। तो सुन बेटा, पहले यहाँ पर देखो अक्षय, और यहाँ पे देखो तुमको, तो यहाँ पे क्या है, ये बेटा एटॉमिक मास है, मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, देखो बढ़ रहा है ना। तो ये अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, एटॉमिक मास। आर यू गेटिंग इट। अच्छा, बेटा म्यूजिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है, म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं। हाँ, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये क्या हो गया, सा हो गया कि नहीं बोलो बेटा। ये क्या हो जाएगा, रे रे। अच्छा अभी बेटा काउंट कर, ये और ये एलिमेंट है ना, इन दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। अच्छा अभी काउंट करिए कि कौन सा एलिमेंट है। इफ आई डू नंबरिंग फ्रॉम हियर, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट। सो एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट, कैन यू सी, एट्थ एंड फर्स्ट एलिमेंट विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एज इन म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल में ये देखना बेटा, सा सा हो गया कि नहीं बोलो। ये क्या हो जाएगा, रे रे। तो हु इज ऑक्टेव ऑफ, ऑक्टेव वर्ड क्यों आया, आठ को क्या कहते हैं, ऑक्टेव। तो ये फर्स्ट था और ये एट्थ था कि नहीं, इसलिए ऑक्टेव। पूर्णिमा बेटा, आर यू गेटिंग इट, ऑक्टेव वर्ड क्यों डाला, हेलो। यस सर। क्लियर है। हाँ सर। अक्षर, हैव यू अंडरस्टूड दिस। ओके, पेंसिल से चाहिए तो आप ये खाली ऊपर लिख दो बेटा, सारे गामा पादा निशा, और ये 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट। और ये लिख दो सारे गामा पाद। इंग्लिश में सारे गामा पादा निशा नहीं होता, इंग्लिश में क्या होता है, म्यूजिकल नोट। हाँ, डो रे मी ला फा टा, तो ऐसा आता है ना भैया, बता देता हूँ। क्लियर, समझ में आ गया। ए लेकिन ये भी फेल हो गया बेटा, क्यों फेल हो गया। डन, डन, डन। ये खाली कहां तक अप्लीकेबल था, ओनली टिल पोटेशियम, ओनली टिल पोटेशियम। हु इज ऑक्टेव ऑफ बेरिलियम, आठवां एलिमेंट बेरिलियम से कौन है, मैग्नीशियम। बोरॉन का ऑक्टेव एल्यूमिनियम। आर यू गेटिंग इट, इट दैट। डन 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 डन, क्लियर, डन डन। तो ये भी फेल हो गया बेटा। तो वी गो टू द न्यू न्यू जेंटलमैन नाउ। अभी जो नया बंदा आने वाला है, दैट इज नोन एज व्हाट, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। इज फादर ऑफ क्लास। देख बेटा, ये म्यूजिकल नोट में तेरे को बता रहा था ना, ये देख, सारे गामा पादा निशा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डो रे मी फा सो ला टी। फिर वापिस क्या आएगा, डो, तो डो डो, रे रे, मी पापा, ऐसा। एवरी फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट एंड द म्यूजिकल नोट। फेल हो गया ये भी, यू नॉट अप्लीकेबल बियॉन्ड।
ए जसनूर बेटा, नेक्स्ट कौन है? रशियन है, देख भाई जसनूर, यस सर। रशियन आ गया भाई। नेक्स्ट रशियन केमिस्ट है। वो इज द रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंदलीफ। मेंदलीफ भी बोलते हैं। देख लो कैसा दिखता था, देखो। ओके, नाउ ही इज नोन एज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ही वाज द फर्स्ट वन टू क्लासिफाई एलिमेंट इन ग्रुप एंड ऐसा। ये देख बेटा, इधर आ। ये देख ए, इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला था। ये ऐसा को क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। क्या बोला? और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? ये देख, हॉरिजॉन्टल को नहीं, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, पीरियड्स। अच्छा, पीरियड। अभी अरेंज द एलिमेंट। देखो सब आ जाओ बेटा फटाफट। पेज नंबर 81 पे आ जाओ, टॉप पे। पहला आपको क्या पूछेंगे? व्हाट इज मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ? और एक सेकेंड। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ 81 पे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक वेट। इसने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे डाला। अभी अक्षय तू बोलेगा सर व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी? अच्छा बेटा, सनराइज होता है, सनसेट होता है, फिर वापस सनराइज होता है, सनसेट होता है। स्कूल में आपका मंडे का टाइम टेबल एवरीडे रिपीट होगा, राइट? तो ऐसा फिनोमिना विच रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मार्क करो डेफिनेशन। द प्रॉपर्टीज विच रिपीट themselves at regular interval are called periodic properties. क्लियर? ओके, चलो। अभी ये उसका टेबल है बेटा। ये टेबल हम लोग ने बेटा पूरा अच्छे से नहीं दिया है। मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ कैसा है एक्चुअली टेबल। क्लियर है? ओके। अच्छा, लेकिन पहला आप इसमें आपको क्या क्या याद रखना है बोलो। ये देख, दिस वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड एज व्हाट? बोलो। वर्टिकल को क्या कहते हैं? ग्रुप्स। तो देखो बेटा, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड। और ये हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे? ऐसा, पीरियड्स। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो ऐसा याद रखो, हार्दिक पंड्या, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है। हार्दिक पंड्या। तो एच इज फॉर हॉरिजॉन्टल, पी इज पीरियड, हॉरिजॉन्टल पीरियड। याद रहेगा? अभी भूलोगे क्या? या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हॉरिजॉन्टल पीरियड, बस पीरियड या हॉरिजॉन्टल होता है तो वर्टिकल क्या होगा? क्लियर? नाउ इसका ये टेबल देख बेटा यहाँ पे। अक्षय बेटा, आई वांट यू सी दिस टेबल। ये लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? एटॉमिक 2,1 होता था कि नहीं? बोल। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। वेरी गुड। तो 281 होगा कि नहीं? तो इनके बाहर वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 1 ना। तो दोनों का वैलेंसी भी क्या होगा? सेम ना। तो देखना, एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। चलो इसका भी करते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम का। वृंदा बेटा, बेरिलियम 4 है तो 2,2 होगा कि नहीं? मैग्नीशियम इज हाउ मच बेटा? 12। सो इट विल बी हाउ मच? सो हाउ मच इलेक्ट्रॉन दे आर हैविंग बेटा? तो वैलेंसी भी 2 होगा कि नहीं? देयरफॉर अब ये समझा, वैलेंसी इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, देयरफॉर वैलेंसी अगर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर। इज दिस क्लियर बेटा? हेलो अक्षय बेटा, गॉट इट? वेरी गुड। चलो बेटा, ये पॉइंट आ गया। तो मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन में क्या था? हॉरिजॉन्टल रो पीरियड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, एलिमेंट इन द सेम वैलेंसी, सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। क्लियर? अच्छा, अभी बेटा ना ये एक्चुअल टेबल नहीं है अक्षय बेटा। ये देख, ये पूरा इसका एक्चुअल टेबल इतने मतलब आधा ही दिया है। ओरिजिनल टेबल कैसा था इसका पता है क्या? ये देखो, दिस इज इज ओरिजिनल टेबल बेटा। ये रहा। दिख रहा है? ये वर्टिकल कॉलम को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो। हाँ, नहीं था उसके टेबल में, उसका ड्रॉबैक था बेटा। देख रहे हैं? ये वर्टिकल कॉलम ग्रुप, हॉरिजॉन्टल को नाउ। अच्छा बेटा, अभी आप देखोगे बोरॉन है, ये बोरॉन के नीचे खाली जगह दिख रही है कि नहीं? तो इसलिए उसने उसको नाम दिया इक्का बोरॉन। क्या नाम दिया? ओके। अच्छा, व्हाट ही डिड बेटा, ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। देन व्हाट ही फाउंड के इन दोनों के बीच में कोई तो आना चाहिए, इसके और इसके बीच में भी दो आना चाहिए। उसको वेट मिल गया था लेकिन वो एलिमेंट क्या था वो उसको पता नहीं था। तो ही प्रेडिक्टेड इन एडवांस कि भविष्य में कोई एलिमेंट आएगा, इन फ्यूचर में एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड दैट विल बी प्लेस्ड हियर। ये कहाँ पे? एल्यूमिनियम के नीचे है कि नहीं? बोल बेटा। दिस इज बिलो। बिलो का मतलब होता है इका, बिलो। तो यहाँ पे क्या होगा? इका एल्यूमिनियम। क्या नाम हो गया? एल्यूमिनियम। ये बिलो सिलिकॉन है कि नहीं बेटा? तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? बोलो बेटा। ये देख, खाली जगह है कि नहीं? इका सिलिकॉन, इका।
क्लियर? इका वर्ड क्यों आया वो समझा? He left empty spaces and predicted the property of the element and he named them as what? Ica boron, Ica aluminium, Ica silicon. क्लियर है? राइट बेटा। एंड आफ्टर डिस्कवरी क्या नाम हो गया? इका बोरॉन का नाम क्या हो गया? स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम का गैलियम। इका सिलिकॉन जर्मेनियम। देखो ये मैथ द कॉलम में एमसीक्यू में आएगा। इका बोरॉन इज नोन एज व्हाट? देखो ना बेटा, स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम। अच्छा सब है, मैं बताऊंगा। अभी मैं याद रखने का ट्रिक भी बताता हूँ। ये एक डिग्री होती है बैचलर ऑफ साइंस, पता है कि नहीं? बीएससी। तो इका बोरॉन इज स्कैंडियम। देख, इका बोरॉन इज स्कैंडियम, याद रहेगा। एक गैलियम के अंदर एल वर्ड आ रहा है कि नहीं? तो एल्यूमिनियम के अंदर भी एल आ रहा है कि नहीं? तो इका एल्यूमिनियम इज गैलियम, जिसमें एल होगा वो होगा। ओके। फिर आपको पता है जर्मन शेफर्ड एक डॉग का ब्रीड होता है, पता है ना? जी और तो देख, एस क्या होता था? इका सिलिकॉन। इसका नाम क्या होगा? जर्मेनियम। याद रहेगा अभी ये? भूलोगे क्या? ये एमसीक्यू में आएगा। पूर्णिमा बेटा, जसनूर, याद रहेगा? बीएससी इक्का Yes. सिलिकॉन जर्मन शेफर्ड। देखो तो अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है? तो ये यहाँ है। एक्सक्यूज मी। ओए अम्मा, यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। ये देखो, डन, डन, डन। मैं कलर में दे देता। इक्का बोरॉन का नाम क्या है? स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम का नाम क्या है? गैलियम। इक्का 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 सिलिकॉन का नाम क्या है बोलो? तो आप चाहिए तो यहाँ पे स्कैंडियम के लिए आप क्या याद रखोगे? बीएससी। ठीक है। और उसके लिए क्या याद रखोगे? सिलिकॉन के लिए जर्मन शेफर्ड। शेफर्ड का स्पेलिंग मैं भूल गया रे, क्या है? शेफर्ड। एफएस। शेफर्ड ऐसा। जर्मेनियम एस। याद रहेगा। और गैलियम में और एल्यूमिनियम में एल एल आता है तो हाँ। So, eight. वेरी गुड। चलो बेटा आ जाते हैं यहाँ तक। कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। क्लियर? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. अच्छा अभी बेटा ये फेल भी हो गया। क्या हो गया? फेल। फेल कैसे हो गया वो भी देख। टेन टेन एंड हाउ यू फेल। इसका डिफेक्ट्स। हाउ यू अरेंज द पर एलिमेंट। फेल, सर अगर फेल हुआ है तो पढ़ना क्यों है, वो मेरा पढ़ना ही क्वेश्चन। पड़ता है बेटा, ऐसे ही है। अच्छा ये यहाँ पर देखो, अक्षय बेटा, हाउ यू अरेंज द एलिमेंट बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ना। लेकिन यहाँ पर देख बेटा, इसको दोनों को देखो बेटा। तो सर एक्सचेंज हाँ नहीं उसने, लेकिन अगर उसने देख यहाँ पे 58.9 और ये 58 पॉइंट। अरे ये हैवी पहले आ गया कि नहीं बोलो? हाँ एच में उसने पहले ऐसे ही किया था, लेकिन क्या हो रहा था, निकल का प्रॉपर्टी निकल में यहाँ पे लाता तो इससे मैच नहीं हो रहा था। कोबाल्ट इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, तो इसने ऐसा घुमा दिया तो अरे मैच होने लगा। तो इसको कहते हैं एनॉमलस पेयर। क्या कहते हैं? ही फेल टू एक्सप्लेन बाय सर्टन इन सर्टन केसेस हायर एटॉमिक वेट वेर प्लेस्ड बिफोर लोअर। क्या फेल हो गया वो बोलो बेटा? एनोमलस पेयर। और इसने तो बढ़ा है। हाँ उसने, लेकिन पर्पसली उसने चेंज किया था। आगे सर एक्सेप्ट हायर एटॉमिक वेट हैव बीन प्लेस्ड बिफोर लोअर। लेकिन उसको पूछा ऐसा तूने क्यों किया, तो उसने बोला कि प्रॉपर्टी मैच करने के लिए। लेकिन फिर वो लोग ने बोला अरे तूने तो स्टेटमेंट पहला बोला कि देयर शुड बी अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसने बोला मेरा मर्जी, मेरे को ऐसे ही करने। सर एक्सेप्ट हाँ तो एक्सेप्शन है ना वही। तो बोले फेलियर हो गया ना बेटा। देखना बेटा, ये कोबाल्ट 58.9 वाज प्लेस्ड बिफोर निकल 58.6। क्लियर है? अक्षय बेटा तेरे को पता है आइसोटोप्स क्या होता है? हम लोग ने पढ़ा था फिर में। सर उसमें 7 हाँ वो चलेगा, ये नंबर, ये जो टेक्स्ट बुक का नंबर। आइसोटोप बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एटॉमिक नंबर से, हाँ, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम। मास नंबर क्या था तीनों का? 1 2 3। ये मास इसका, ये है ये मास। ये भाई तो आइसोटोप का, अच्छा पीरियोडिक टेबल उसने हाउ ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास।
तो हाइड्रोजन का 3 पोजीशन होना चाहिए था कि नहीं, देखना। लेकिन ऐसा 3 पोजीशन होता है हाइड्रोजन का। तो अभी अब तक सब लोग ने क्या किया था, एटॉमिक मास के वजह से प्रॉब्लम, तो एक जन ने सोचा, अरे बाप रे, ये देखना, अगर मैं एटॉमिक नंबर पे करूं तो एक ही पोजीशन ऑक्युपाई करेगा कि नहीं। तो लोग, द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन एटॉमिक मास। क्लियर, राइट, इसलिए एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया दिमाग में। ठीक है। अच्छा, उसके टेबल में ऐसा नीचे कोई अलग से एलिमेंट उसने रखा था क्या, देखना ऐसा एकदम नीचे कोई है क्या और एक्स्ट्रा नहीं है ना। तो उसको नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एक्टेनाइट्स, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एक्टेनाइट्स एंड रेयर अर्थ्स। तो अब नया बंदा आया, नया बंदे का नाम क्या है बोलो, ही केम विद अ न्यू थॉट प्रोसेस, हेनरी मोजली। कौन आएगा, हेनरी मोजली। टेन टेन आ जाओ। ए नाउ द न्यू जेंटलमैन केम, हेनरी मोजले। देखो ये ऐसा दिखता था हेनरी मोजले, चिकना बॉय। Okay. He was the first one to arrange the element on the basis of atomic number. He was the first one to arrange the element on the basis of atomic number. ठीक है, हेनरी मोजले। तो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। वही लॉ था, मेंडलीफ का ही लॉ था। मेंडलीफ में खाली एटॉमिक वेट था, उसने वेट को गायब करके क्या कर दिया बोल। अरे मोजले में ऐसा एटॉमिक वेट था ना, उसके जगह पे उसने क्या लिखा, एटॉमिक। क्लियर है। अब बेटा इधर पे आ जाओ। ये अब ये टेबल देखते बेटा, अपना टेबल कैसा दिख रहा है, सब में मार्किंग दूंगा। ये हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं बोल बेटा, पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, हाँ। ग्रुप्स। उसके टेबल में कितने ग्रुप और पीरियड है देख लो बेटा। ये देखिए लाल में लिखा है ना बेटा, वर्टिकल कॉलम कितने हैं बेटा देखो, 1 2 3 4, कितना है, 18 ग्रुप्स, 18। हाँ, पीरियड कितना है बेटा, 7। ये देख 1 2 3। आप बोलोगे सर ये क्या है फिर, बेटा ये ना यहाँ से ओरिजिनेट होने वाला है, यहाँ से, वो मैं बाद में बताऊंगा, ये यहाँ से आता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। सो हमने 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। अभी आपको क्या क्या मार्क करना है, इधर आ जाओ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 82। 82 में आप लोग क्या क्या मार्क करोगे, हेनरी मॉसली अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। उसके टेबल में कितने पीरियड थे, 7 हॉरिजॉन्टल रो पीरियड, कितना वर्टिकल कॉलम है, 18 वर्टिकल कॉलम, कॉल्ड एज ग्रुप्स। एंड व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मार्क करो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स बरोबर है, मार्क कर दिया क्या बोलो बेटा, हाँ आ एक जाओ। सेकंड। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, चलो आ जाओ। ए इधर पे आ जा अभी बेटा, जल्दी जल्दी इधर आ। यहाँ पे देखो ना बेटा, ओए। हो गया। हाँ, अब बेटा इधर पे आ जाओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा देखो ऐसे हम लोग ने अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 18। एंड बेटा यहाँ पे मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट, हाय हेलो लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला एंड कड़क चाय और काजू केक whatever. How I have arranged this element बेटा on the increasing order of what बोलो, atomic number. ओके, क्लियर। अब आपको है ना बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें है, वो आपको है ना अभी ये कॉपी करना पड़ेगा बेटा, आ जाओ फटाफट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट,
I want all of you to copy this. चलो, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ये कॉपी करना है। पहला क्या कॉपी करोगे बोलो बेटा? ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट, राइट। अच्छा, पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? पीरियड नंबर। पीरियड नंबर क्या होता है बोलो? नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल। फिर ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मीन्स विच इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट। क्लियर है? अच्छा, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वन होगा, क्या होगा? देन इट विल बी ग्रुप वन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर दो होगा तो क्या होगा? ग्रुप टू। बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थ्री और मोर होगा तो क्या करने का? ग्रुप नंबर विल बी व्हाट? 10 प्लस दैट नंबर। अगर थ्री होगा तो 10 प्लस 3, फोर होगा तो 10 प्लस 4। ठीक है, चलो इतना कॉपी करो फटाफट। कॉपी इट फास्ट। सर इधर आते हो। कहाँ पे? टेक्स्ट बुक में ही कर लेने तो यहाँ पे भी कर, लेकिन यहाँ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कॉपी करना है ना, ग्रुप नंबर भी सर? हाँ। पूरा कॉपी करना है ना? यस। ओके सर। हो गया कॉपी करके? डन। चलो बेटा, अभी है ना, अभी आंसर करो। ए अक्षज, अगर मैंने बोला तेरे को सोडियम का एग्जाम में बोलेगा फाइंड पोजीशन ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर इज गिवन, तो पहले क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बता? ये दिया ना यहाँ पे 11। अच्छा हाँ, तो अभी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। तो अभी पीरियड कैसे ढूंढेगा? पीरियड का क्या फॉर्मूला बता? कितना ऑर्बिट है इसमें? 3। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बोल बेटा? ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए क्या करने का? बैलेंस मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? आउटर। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? वन। तो वन होगा तो ग्रुप। समझा गया? चलिए वृंदा, बता मुझे क्या करेगी इसका? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ, तो 287। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिट कितनी है पहला बता, ऑर्बिट कितनी है? 3। तो पीरियड क्या होगा बोल? 3। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 2 है या 3 और मोर है? हाँ, तो अभी बाहर हम लोग क्या करेंगे? 10 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? चलो ये दोनों एग्जांपल कॉपी कर लो। ये पूर्णिमा आया कि नहीं कुछ? सो रही है क्या पूर्णिमा? नहीं सर। तो फिर तेरे को भी आगे का आंसर करना है, चल फटाफट पहले ये दो कॉपी कर लो एग्जांपल, सच कॉपी कर।
टन टन टनी तो। सर आप एक बार पीरियड कैसे निकाला वो समझाओगे? तो अभी तक क्या कर रही थी बेटा, अंडा दे रहे थे क्या? ओके, व्हाट इज पीरियड नंबर, बोल बेटा, नंबर ऑफ। अरे बोल नंबर ना। ऑफ ऑर्बिट। हाँ, तो सोडियम का नंबर 11 है, तो 281, तो कितना ऑर्बिट होता है सोडियम, अगर 281 लिखा तो एक दो तीन, राइट ना बेटा? हाँ सर। तो कितना ऑर्बिट दिख रहा है तेरे को? 3। इसलिए पीरियड 3, इजी। हाँ। अच्छा, अभी बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है एकदम बाहर वाले में? 1। तो बाहर वाले थे ग्रुप नंबर के लिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो ग्रुप 1। चल अच्छा। बता इसमें बेटा, 17 में कितना है बोल बेटा, 287, कितना ऑर्बिट है बोल? 3। हाँ, तो पीरियड नंबर क्या होता है? 3। वेरी गुड। अच्छा, अभी बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? बाहर 7। तो ये 1 होता तो 1 होता, 2 होता तो 2, लेकिन ये क्या है, 3 और मोर में आएगा ना 7। तो हम्म। उसका फॉर्मूला क्या था? 10 10 प्लस। प्लस हे हे 17। हे, समझा क्या? बोलो। हाँ सर। आ जाओ, बहुत अच्छे बेटा ना, आगे बढ़े क्या? चलो, ये खुद से करो, दो एग्जाम्पल मैंने दिया, चलो इतना भी दे दिया, चलो जाओ। क्यू एटॉमिक नंबर 20 है, चलो मन में करो, चलो फटाफट तुम लोग लिखना, अगर तू लिख के कर। पूर्णिमा तू बताएगी मुझे पहले का। क्यू देख मैंने लिख के भी दे दिया है, पूर्णिमा 2882, तो कितना ऑर्बिट है बता? ओ। 4। हाँ, तो पीरियड नंबर। 4। वेरी गुड। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 20 ग्रुप आएगा ना? कैसा 20, बाहर कितना है? बाहर 2 है। तो देख, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता तो 1, 2 होता 2। तो 20 कहाँ से आएगा? तो 2 आएगा। हाँ, यहाँ पे बता, नाइट्रोजन का 7 था, कितना ऑर्बिट नजर आ रहा है बोल? 2। 2। Sir, हाँ please. बोल। Let me answer. Sir, 15 answer. क्या नहीं, पीरियड क्या है? 15, group 15. हाँ, ग्रुप 15, वेरी गुड। कौन तू ना? हाँ, अबे बाहर 3 या 3 से ज्यादा होगा तो +10 होगा कि नहीं, कॉपी करो एग्जाम्पल। पूर्णिमा अभी आया कि नहीं? हाँ सर। समझ में आ गया? ले लो ये। यस सर। किसी ने लिखा है इधर? हाँ। नहीं। हाँ, वाह, आप इसके पहले लेक्चर था ना, वही सब बताया। अभी बेटा देख, बहुत मस्त है वृंदा। अभी मैं तेरे को अगर ऐसा लिखता, एक अभी यहाँ पे तेरे को लिख के दे रहा, देख। सपोज मैंने तेरे को ऐसा लिख के दिया, एक एलिमेंट है, अरे यार किधर गया, अरे तो आपका स्क्रीन शेयर ही खत्म हो गया। हाँ, अभी अभी चालू आएगा। हो देयर इज एन एलिमेंट जेड, ऐसा मैंने दिया, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? यार इसको मैं ऐसे भी लिख के देता, हीलियम। तो भी चल, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, कितना ऑर्बिट है बोल? हाँ। तो पीरियड क्या हो जाएगा बोल? वेरी गुड, पीरियड 1। ग्रुप ग्रुप में अभी बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो तू क्या बोलेगी, ग्रुप क्या होगा बोलो बेटा? टू। लेकिन बेटा ये ट्रू नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, ग्रुप 18। क्यों? हीलियम नोबल गैस होता है ना, पीरियोडिक टेबल में एकदम एंड में होता है। तो इसके लिए आपको खाली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी कर लेना, देखिए ये एक्सेप्शन क्या है, ये गया क्योंकि वो एक्सेप्शन। नोबल गैस है। हाँ, और जेड लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिख ले ये एक्सेप्शन। सबका तो आएगा, वो सबका लॉजिक से आएगा, इसका लॉजिक नहीं है। सपोज बेटा अगर मैंने तेरे को ये दिया रहता, चले हीरो, ये ले बेटा, नियॉन। अच्छा चल, नियॉन दिया रहता तो तू क्या करता बोल बेटा, 10। तो उसके लिए 18। क्या लिखता, 2,8, बराबर है कि नहीं? कितना पीरियड होगा बोल? 2। अच्छा, ग्रुप के लिए क्या करेगा, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 2 और से 3 और मोर में आएगा ना, तो 10 + 8, 18। इसमें तो रूल अप्लाई हो रहा था, लेकिन इसमें अप्लाई हो रहा था क्या? इसलिए इसको ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बड़ी डिफिकल्ट, परफेक्टली अंडरस्टूड, दिमाग में क्या गया सबके है? हाँ बेटा, आप लोगों को इधर आओ बेटा। बेटा अभी ना मैं बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ, आप लोग घर पे लिख के आओगे, ठीक है? लेकिन मैं सब बता रहा हूँ यहाँ पे, टन टन लिख के आना नेक्स्ट क्लास में, वरना अलाउ नहीं करूंगा।
चलो बेटा, अभी हम लोग ने ये कर दिया। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं बेटा, देख लो बेटा। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, देख बेटा। ये हाइड्रोजन और हीलियम है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में कितना है, दो है ना, तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। एग्जाम में पूछेंगे फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट। सेकंड में कितना है बोल बेटा, कितना एलिमेंट है, काउंट करना बेटा। एक वन टू, हाँ 8। थर्ड में भी कितना है, 8। तो सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हैं, शॉर्ट। फोर्थ और फिफ्थ में देखेंगे तो 18 है। देखना 19 से मैं स्टार्ट करता हूँ, कहाँ पे जाता हूँ, 36 तक ना, तो 18 होता है। फिफ्थ में भी 37 से 54, तो 18 है। 18 तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड। क्या कहते हैं। अब बेटा है ना, मजेदार बात देख बेटा, यहाँ पर अभी ना जो मैं सिक्स वाला बताने वाला ना, उसमें देख। सिक्स पीरियड अगर तो देखेगी ना गौर से, ये देख। यहाँ पे 56 था, फिर क्या था बोल बेटा, 57। और 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ रहा है, तो बीच में कितने एलिमेंट गायब है, 14 एलिमेंट्स। वो नीचे की तरफ है, वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ। इसलिए वो, और अच्छा वो लेंथ, वो 57 वाला लेंथनम होता था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, लेंथनाइट्स बेटा। ये देखा ऐसा कैसा आएगा, इसे देख रहा है। देख रहा है 14 एलिमेंट, देखना 57 और डायरेक्ट 72 है, तो ये लेंथनाइट्स है। क्यों लेंथनाइट बोला गया, क्योंकि लेंथनम के बाद वाला है। तो बेटा अभी यहाँ पे तुम्हें जो बताया, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, अब वो बता, तो बाद में बताऊंगा। पहला 14, 2 प्लस 14, 16। 16 और ये कितना हो गया, 10। 26 और ये कितना हो गया, 6। तो कितना हो गया, 32। तो सिक्स पीरियड इज लॉन्गेस्ट, सिक्स पीरियड इज। अच्छा अभी इसमें सेम यहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम। हाँ सेवेंथ में देखना बेटा, ये 88, 89, 89 से डायरेक्ट 104 आ रहा है ना, तो ये एक्टिनियम के बाद वाला एलिमेंट है, इसलिए उसको एक्टिनाइड बोलते हैं। अच्छा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों कौन से पीरियड में है, सिक्स्थ में है, ये सिक्स्थ में है, और एक्टिनाइड कहाँ पर है, सेवेंथ। ठीक है, ओके। तो अभी बेटा आपको पूछेंगे विच इज द लॉन्गेस्ट कौन सा है तुम्हारा, बोलो। सिक्स पीरियड इज 32 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है, अभी आप बोलोगे, और तो आप बोलोगे सर ये सब कहाँ है, तो बेटा ये मैं आपको शेयर करके देने वाला, आप लोग वो बाद में घर पे लिखना है आप लोगों को। इधर आ। पीरियड वन में कितने एलिमेंट है, टू शॉर्टेस्ट। पीरियड टू एंड ए थ्री, 8 शॉर्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ 18 लॉन्ग। सिक्स्थ इज 32 लॉन्गेस्ट। सेवेंथ इज इनकम्प्लीट, उसमें भी कैपेसिटी 32 का था, लेकिन डिस्कवर्ड एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ 26। आप बोलोगे सर ये सब कहाँ दिया है, तो ये आपको बता देता, आपके टेक्स्ट बुक में भी है बेटा, ये देखिएगा। एकदम एंड में दिया टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में तुम्हारा 90 पे, 90 दिख रहा है, 9090। वहां पर आप देखोगे ना, तो ये देखो, देखना बेटा, फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट, 2 एलिमेंट्स। पीरियड टू एंड थ्री बोथ आर शॉर्ट, 88 एलिमेंट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ आर लॉन्ग, 18 एलिमेंट्स। सिक्स्थ इज लॉन्गेस्ट, 32। और ये सेवेंथ में कितना दिया है, 26, इनकम्प्लीट। मिला क्या, बोलो पेज नंबर 90 पे। यस बराबर एक है, तो मतलब कभी कभी डिफिकल्ट, बोलो 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 बोलो। हाँ, राइट, चलो बेटा अब इधर पे आ जाते हैं। ये सब मैंने आपको दे दिया है, बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत टन टन आए, क्या ठंडी लग रही है। ओके, पीरियोडिक टेबल में अभी बेटा, अभी मैं तुम लोगों को ना बहुत सारी मेन मेन चीजें बताने वाला बेटा। ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है। ग्रुप वन को क्या बोलते हैं, अक्षय, ग्रुप वन का नाम क्या है, देख, अल्कलाइन मेटल। ग्रुप टू को क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ। 3 से 12 को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। 17 को क्या बोलेंगे, 18 इनर्ट गैस। और अब बेटा ना आपको ना ये सब याद रखना है। चलो पहला वाला मैं आपको बताते आ जाता। टेन टेन अल्कली मेटल, अभी देख बहुत मस्त है यहाँ पे। ये याद कैसे रखोगे अल्कली का बेटा, लीना के, आरबीसी, फरार। ली मतलब लीना ने की रब से फरियाद। लीना की रबड़ी सस्ती और फ्रेश, जो आपको अच्छा रखना है रखो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अच्छा मजेदार देख बेटा, सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बता मेरे को, 1, इसलिए वो ग्रुप वन में। अब समझा है, देख ग्रुप और वन। सबका हाँ
अरे बाहर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप वन ना। अच्छा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसिटी वन, बराबर है कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वन। जिसका एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यूनिवैलेंट। गिव रीजन। इसको स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे लूज इजीली। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है उसको स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। विच ग्रुप एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट? तो आप क्या बोलोगे? ग्रुप वन। They are very soft metal. They can be cut with the help of knife. Highly reactive. Okay, they are metals. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। फिर बाद में आपको ये भी पूछेगी बेटा, इनको है ना कैरोसिन के अंदर रखना पड़ता है। क्यों रे? बिकॉज अगर तू बाहर रखेगी तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होकर दे विल कैच फायर। इनको अल्कली क्यों बोला? सच अल्कली तेरे को याद आ रहा है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको अल्कली बोलते हैं। तो देख, इसको अगर पानी में डालेंगे बेटा, देख, गिव रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल। ये आया कि नहीं? When dissolved in water, they form strong alkali। देखिए पानी के अंदर डाल दो, देखिए अल्कली है कि नहीं? ओके, आप बोलोगे सर इतने सारे पॉइंट ये सब कहाँ है? ये सब आपको लिखना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। ये देखो, टेक्स्ट बुक में लोगों ने ना दो जगह पे डिवाइड करके दिया, मैंने इसे एक साथ में दिया था। देख बेटा, अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल, ये तेरा पेज नंबर है 86। वहां पे देख क्या क्या दिया है, बोल अक्सर। लीना के आरबीसी फरार, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन, हाईली 86। इलेक्ट्रो लाइट मेटल ए, व्हाई दे आर नोन एज अल्कली? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। इतना डिटेल में नहीं दिया, लेकिन आप बोलोगे सर वो सब कहाँ पर है रेड्यूसिंग एजेंट वो सब? तो देखिए यहाँ पे दिया वो 87 में। दो जगह पे उन्होंने अलग अलग करके दे दिया बेटा। दे आर लाइट मेटल, दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर यूनिवैलेंट, strong reducing agent because they lose electron easily, highly reactive, electropositive metal, soft, can be cut with the help of knife। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। ठंडी लग रही है बेटा? हाँ। नहीं सर। अरे तुझे पूर्णिमा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये पूर्णिमा। अब बेटा यहाँ पर देख कौन आ गया, बोल ग्रुप टू को क्या बोलते? बोल, अरे बोलना, लिखा तो है यहाँ पे, पढ़ना। अल्कलाइन अर्थ अब बेटा मिटल्स। तो इसको याद कैसे रखने का? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सर ये आप ऐसे लिख के बोलो। सब भाई पूरा दे शेयर कर रहा हूं मैं, पूरा देखना लिखा हुआ है। ये देखना बेटा, लिख के दोगे क्या? ये देखना बेटा, मैंने तो पूरा अंडरलाइन करके दिया है। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बाप बेरियम, आरे रेडियम। क्लियर है? अच्छा चल, वृंदा, सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है इसके? तो हाँ, किसी से नहीं, टू था इसके लिए वो सेम ग्रुप में, अब समझा गया? इसलिए ग्रुप टू दिखा कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? टू, तो वैलेंस भी क्या होगा? टू। ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। डाई वैलेंट, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, बट लिटिल लेस देन अल्कली, क्योंकि अल्कली को एक ही करने का था, इसको दो। 1 किलो मुझे वेट लूज करना है तो इजी है, लेकिन 2 किलो के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी कि नहीं? ये समझ में आया? अभी आप बोलोगे सर ये सब कहाँ दिया है? तो ये देखो इधर पे, लेकिन आधा ही दिया है। नहीं, यहाँ पे आधा दिया और आधा इधर पे दिया है। देख 86 में, ये देख, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी अल्कलाइन अर्थ। ओके, रेडियम agrees, oh father agrees to give you car and scooter both, very rare chance। ओके चलो बेटा आ जाते हैं। ये दे आर प्लेजेंट, देखिए बेटा, दे आर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डाईवैलेंट, प्रॉपर्टी सिमिलर बट स्लाइटली लेस देन अल्कली। समझा क्या? बोलो ना। अब यस बेटा हम सर। लोग यहाँ पर आ जाते हैं, बोलो। ए जसनूर, जसनूर सो गया क्या बे? नहीं सर, मैं जिंदा हूँ। जस्सी भाई, चेस। यहाँ पे देख, ग्रुप 17 का नाम क्या? बोल। सर हेलोजन। हेलोजन। कैसे याद रखने का? फर्स्ट सर क्लास बिरयानी आई रानी एट। आए। सर ये नहीं आती। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, या फिर कल बाहर आई आंटी। सर फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट वो डिस्प्लेसमेंट भी था ना। हाँ वेरी गुड। ओके, तो हम लोग क्या याद रखेंगे बेटा? ये ले बेटा, पूर्णिमा ये वाला,
फर्स्ट क्लास देख, तू बोली तेरे लिख के देगे, देख सब लिख के दिया है। फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा एरर है, 80 को मैं करके। सर वो क्लोरीन में फर्स्ट था ना। क्लास, हाँ, बिरयानी, आई ए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अक्सर सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 7 ना। तो ग्रुप में क्या पढ़ा था? 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तो +10 कर देते, तो क्या होगा? अब समझा सब 17 में क्यों है। बराबर। ए, अक्षर ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितना लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, तो अगर तो -1 लेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो देता था वो क्या था? रेड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? गेन कर रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। विच ग्रुप एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझा गया? फिर बेटा अभी तुमको पता है क्या इसको हेलोजन नाम ही क्यों आया? हाल, हाल मतलब होता है सॉल्ट, जैन मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। तो दे रिएक्ट विद मेटल, देख सोडियम के साथ ये हेलोजन ने रिएक्ट किया तो देख सॉल्ट बनाया कि नहीं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हेलोजन। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, टेन टेन, ये फ्लोरीन क्लोरीन दोनों कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों कौन है? गैस। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड। आयोडीन क्या है? सॉलिड। फिर बेटा नेचर में फ्लोरीन कैसा होता है? F2, क्लोरीन Cl2, Br2, तो एटॉमिसिटी कितना है? डायटोमिक। मोस्ट ऑफ नेचर में सबसे ज्यादा हेलोजन कौन सा पाया जाता है? टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक ऐसा ऐड आता है ना, फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन। स्विमिंग पूल में क्या डालते हैं? आयोडाइज नमक में क्या डालते हैं? आयोडीन। पता है ना, गोइटर का बीमारी नहीं होगा इसके लिए। तो फिर आप बोलोगे सर लेकिन ये सब कहाँ दिया है? तो बेटा उन्होंने टेक्स्ट 2 बुक। जगह पे दिया है, देखिए, एक तो पेज 86 पे। हाँ, हाँ, ये देखिए बेटा, पेज नंबर 86 में हेलोजन दिखाई दिया। फर्स्ट क्लास बिरयानी आइट, एस्टेटाइन अंडर रिसर्च, 1 हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So radioactive. नहीं, हाँ, एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव। अभी फिर बाकी मुझे सर आपने तो बहुत कुछ बताया, वो कहाँ पर है? तो ये इधर है। देख बेटा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन and univalent strong oxidizing agent, they are electron acceptor, highly reactive, electronegative. ओके। हाल मतलब सॉल्ट, जैन मतलब प्रोड्यूसर, व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल दे फॉर्म सॉल्ट। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन फ्लोरीन, मोस्ट अबंडेंट क्लोरीन। ओके, क्लोरीन स्विमिंग पूल में डालते हैं टू किल जर्म्स। आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट में, क्लोरीन टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, तो इसलिए क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्लियर है? ड्रिंकिंग वाटर में भी डालते हैं बेटा इसको, टू किल। Oh my God. How are you doing? Both of you came early, man. Why so early? Have come on. No, I never gave तो any कौन है? permission. No. Okay. Yeah, six. I have given you permission. So what time you will start writing तो the text? कौन है? कौन सा क्लास है? 6 p.m. you are supposed to come. Actually. 6 o'clock you are supposed to come. Okay, not a good bit. You can read it. No. Chlorine, bromine, iodine. Shall I give you the paper directly? You will start writing that. हाँ, 6 o'clock. अच्छा, तो ये रिवाइज। ए, फ्लोरीन क्लोरीन क्या बोल बेटा? गैस। लिक्विड ब्रोमीन, ये देखिए सब मैंने दिया है कि नहीं, बोलो। वेरी गुड। अब बेटा हम लोग कहां पर आएंगे? नोबल गैस। नोबल गैस कहां पे? जसनूर, ये जस्सी उठ रहे हैं। सर 18th वाला। हाँ, तो 18 में अभी देख रहा है, 18 में कौन सा है? नोबल ए गैस। नॉट गैस। हाँ देखो बेटा, ही ना, नी ना, और करी ना, के एक्स रंगीन। बराबर है कि नहीं? राइट। अभी ये यहाँ पर देखो, मैंने सब लिख के दिया है आपको। ये देखो बेटा, ग्रुप 18 दिखा के नहीं? हीना, ये आप नीना, बनाते हो या वो हीलियम, पहले से ही नीना, बना हुआ है? आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉक्स, जेनॉन, रंगीन, रेडॉन। अच्छा ना, आई वांट जसनूर, टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट? 8 है कि नहीं? 8 8 8। इसलिए बेटा वो यस सर। ग्रुप 18 में 10+8। लेकिन एक एक्सेप्शन था, याद आ रहा है? हीलियम देखा। यस सर। ही हाँ, ना। उसका डुप्लेट था बेटा। अच्छा, ये लोग स्टेबल है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नॉन रिएक्टिव, वैलेंसी कितना होगा? 0। ये हाइड्रोजन H2 होता था, तो क्या हीलियम He2 हो सकता है क्या? नहीं। तो दे आर मोनो एटॉमिक, दे विल ऑलवेज बी सिंगल। जसनू, दे विल बी जस्ट लाइक यू, सिंगल। ओके, अरे राइट। हाँ, अरे अभी तो सिंगल है ना।
हर्ट हो रहा है? अरे ओह सॉरी। और सर आपको पता चला क्या था आद्या तिवारी ने मेरे को क्या किया? क्या हुआ? अद्वैता वाला गाना? नहीं 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 सर, वो सर। वाला नहीं। वो आद्या तिवारी ने मेरे को शुगर फेंका था। Okay, okay, कुकरी okay. क्लास में। Bas. Wait, have you all understood this? Now you will say where all this is given. So it is given here. Look here. And look, noble gases. Can you see monoatomic, noble gas, do not react. Therefore, they are known as inert. Why they are known as zero group? Because their valency is zero. They have all octet except helium, duplet. Clear? तो अभी ये वृंदा बोली सर आपने सब तो पढ़ा दिया, लेकिन ये हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया बताओ? सब पीरियोडिक टेबल। रुक जा, चुपचाप बैठ। We did alkali, we did alkaline, और we did halogen, inert gas। अभी वृंदा बोलेगी सर व्हाट अबाउट दिस, ये नहीं पढ़ा था ना? हाँ, तो अभी ये क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? सर मतलब सर मैं बोलूंगा, सर मैं बोलूंगा। हाँ सर मेटल से नॉन मेटल का ट्रांसिशन। हाँ, यहाँ पे लेफ्ट में मेटल होता है, राइट में नॉन मेटल, इसलिए इनको ट्रांजिशन बोला। इसलिए इनको क्या बोला? दे आर प्लेस ट्रांजिशन बिटवीन मेटल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल्स ऑन द राइट हैंड साइड। अच्छा, इसका मैं सर मैंने पढ़ा है, आपको नाम याद नहीं रखना है, मैंने फिर भी पढ़ा मैं है। बताता। देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू। ठीक है? अच्छा, एनीवेज, अच्छा कॉपर को तुमने पढ़ा है, कॉपर का वैलेंसी क्या होता था? कॉपर 1+ एंड 2+। 2+। Fe का क्या होता था? फेरस। फे हाँ, तो दे है वेरिएबल वैलेंसी। ये कॉपर ब्लू कलर का होता था, कॉपर सल्फेट। Fe डर्टी ग्रीन, याद है ना? पेल ब्लू। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? दे हैव a variable valency, compounds are colored, all are metals। बेटा ये मैं पीडीएफ आज शेयर करने वाला, आप लोग लिख के आओगे पूरा। हाँ पूरा। ग्रुप 3 to 12 transition, all are metal, variable valency, ना their सर। compounds are colored। Hey, why they are यस known as transition? Because they are placed between metal on the left hand side and non metals on the राइट हैंड साइड। तो अभी आप बोलोगे सर ये हो गया, लेकिन अभी आप बोलोगे सर ये यस सर। कौन बाइक चला रहा है कब से? ओके, एनीवेज, नहीं यहाँ सर। पे ये बेबी है, यहाँ जो यहाँ ये देख, यहाँ ट्रांजिशन के अंदर है ना ये भी अंदर है ना? नहीं, तो पहले इसका नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन। दिखा? बिकॉज दे आर इनसाइड द, इसमें दो अलग अलग सीरीज है ना। पहले सीरीज, पहला सीरीज का क्या नाम है? लेंथेनाइड, दूसरे का एक्टिनाइड। ट्रांजिशन के अंदर से आया ना ये, अंदर आया ना, तो आप बोलोगे सर ये कहाँ है? तो ये देखो यहाँ है। देख बेटा, इनर ट्रांजिशन दे आर बिलो पीरियोडिक टेबल। टोटल कितने एलिमेंट है? 28। उसमें भी पहला सीरीज का नाम क्या था बोलो? सर इनर अल्कलाइन लैंथेनाइड, मेटल्स। रेयर अर्थ, इसका नाम याद रखना। पीरियड कौन सा है? 6, यस ग्रुप 3। यस। सेकेंड इनर ट्रांजिशन का क्या नाम था? यस एक्टिनाइड। एल्कनाइड। ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। पीरियड कौन रेडियो सा है? 7, बट ग्रुप 3 था। 7। एग्जाम में 3। पूछेंगे लेंथेनाइड का दूसरा नाम क्या है? रेयर। ओके सर। एक्टिनाइड का दूसरा नाम क्या है? कौन से पीरियड में है वो? और ये कहाँ पे? 6 6 7। 7, वो यहाँ से आया है वो। 6 7, 6 7, यहाँ पे देख बेटा, देखा ना? अभी आप बोलोगे सर बुक में कहाँ है? सो इट्स हियर, लुक। सर पेज 87। 86 वही। है ना बेटा? ना 86 में ये देख, ये देखो, ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन, दे आर मेटल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नॉन मेटल्स ऑन द राइट हैंड साइड। इनर ट्रांजिशन में क्या है? लेंथेनाइड सीरीज, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये लेंथेनाइड का दूसरा नाम क्या है? एक्टिनाइड का दूसरा नाम क्या है? लेंथेनाइड कौन से पीरियड में था? 6। एक्टिनाइड कौन से पीरियड में है? 6 7। ओ या आई एम लाइक दैट ओनली। अच्छा बेटा, अभी इधर पे आ जा। हम लोग ने बेटा सबका पढ़ा के नहीं बोलो? अभी आप बोलोगे सर आपने लेकिन ये तो नहीं बताया। सर इधर है तो जा, चुपचाप बैठना। झिंगी दिखेगा तो दिखेगा ना तेरे को? कहाँ पे नहीं दिखा तेरे को? ये देख रहा है, ये क्या है? ऊपर ही लिखा है लेंथेनाइड रहना।
अंधी है क्या बे? ठीक है। झिंगी। अच्छा यहाँ पे देख। हाँ चल चल अच्छा दादा बोल रही है वे शॉन। अद्वैता इज इन फर्स्ट बैच। यहाँ पे देखो बेटा, ये इसका नाम मैंने दे दिया, इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, इसका भी नाम दे दिया, इसका भी। ये लेकिन ये लोग का हम लोगों ने नाम दिया है क्या बेटा? सर ये सब हालत है नहीं नहीं, झिंगी ये था 17, ये बाकी इनका नाम नहीं था ना बेटा। झिंगी। तो ये ट्रांजिशन के बाद में है ना, तो पोस्ट ट्रांजिशन, पोस्ट ट्रांजिशन। तो आपको पूछेंगे विच आर पोस्ट ट्रांजिशन, ग्रुप 13, 14, 15, 16। ओके, तो ये देख इधर पे आ जाओ, टेन टेन विच ग्रुप एलिमेंट आर पोस्ट ट्रांजिशन, 13, 14, 15, 16। अच्छा, इसमें मेटल भी मिलेगा आपको, नॉन मेटल भी मिलेगा और सर मेटलॉइड भी मिलेगा। टेक्स्ट बुक में पोस्ट ट्रांजिशन Okay. दिया ही नहीं है, सिर्फ 12th तक खत्म कर दिया है। नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक में सब दिया है बेटा, ये देखना पोस्ट ट्रांजिशन भी है। वो पीरियोडिक टेबल पैक में। कर दो। No, no, beta. It is given, dear. Can you see this post transition? It has metal, non-metal, and metalloid, everything. Everything we have. चल बेटा, अभी एक नया चीज बता रहा है। टन इधर आ जा। सर पूर्णिमा में नाम छोड़ेंगे ये नॉर्मल एलिमेंट्स देखो बेटा, नॉर्मल एलिमेंट्स क्या है? देख पढ़, यहाँ पे क्या लिखा, नॉर्मल एलिमेंट्स कहाँ पे है? ग्रुप 1, 2 और फिर क्या पे है बोल बेटा? 13, 14, 15, 16, 17। 13, 14, 15, 16 देखा कि नहीं? तो अभी आप बोलो नहीं नहीं, 18 नहीं है। हाँ, तो वही मैं बताता हूँ, अभी बेटा बताता हूँ, डेफिनेशन में ध्यान दे। डेफिनेशन पे ध्यान दे बेटा, डेफिनेशन में क्या दिया है बोल बेटा? क्यों छोड़ा है? तो और कितना क्लास है? ओके, अभी बेटा ओ 18 बाउंड। को छोड़ा नहीं अरे है। सर डिलीट क्यों किया? नहीं बताता हूँ बेटा, ये सुन। डेफिनेशन पर अक्षर क्या लिखा है? डेफिनेशन, हैव ऑल सेल्स कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द। अच्छा देख, सोडियम, सोडियम देख ग्रुप 1 में था। ये देख, ये देख, ये देख ना भाई, देख तो सही, इसका 2 शेल अंदर का भरा हुआ है कि नहीं बोलो? लेकिन बाहर का क्या है? इनकम्प्लीट। अंदर का दोनों भरा हुआ है, अंदर का दोनों भरा हुआ है, अंदर का दो भरा हुआ है, बाहर का इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। अब समझ में आया? अच्छा, इसमें 18 क्यों नहीं लिया? अगर मैं 18 लेता तो 288 तो भर जाता। हाँ, नहीं वो 8 नहीं भर जाता ना, ये डेफिनेशन नहीं होता ना। क्लियर है? अब समझा क्या? अब बोलोगे सर ये किधर है, तो ये इधर है, उसी पे 86 पे ही है। नॉर्मल एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, ये देख, ग्रुप 1, 2 और डायरेक्ट 13, 14, 15, 16, 17। These are the element in which atom all shells are completely filled except the atoms. याद है? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? नहीं। क्लियर है? सर Yes, ट्रांजिशन sir. मेटल नहीं डाला है क्या नहीं डाला? नहीं, ट्रांजिशन वाले नहीं है ना 1 2 के बाद इंगे। वो आता ही नहीं है ना ट्रांजिशन, इसमें पढ़ना ही नहीं है, होता भी नहीं है वो नॉर्मल में। ओके, अच्छा, जो भी नॉर्मल था ना उसके आगे ए लगता है, क्या लगता है? ए, ए। पर सर रोमन ए, देख रहा है ये? रोमन 1 ए, रोमन 2 ए, 3 ए, 4 सर ए, सर सर 5 सर ए, सर 6 सर ए, सर 7, सर इसके आगे नहीं लगा क्योंकि वो नहीं है। ठीक है, सर बोल बे। सर ये बाद में मतलब जब टेस्ट होएगा एमसीक्यू में आ सकता है क्या? मतलब व्हाट इज द नॉर्मल 28th? आपको ये सब आएगा, इसलिए तो मैं आपको भेज रहा हूँ बेटा ये। ठीक है, यहाँ नहीं पे सर कोई वैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ 28th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में से। 20th खाली एक कैल्शियम, ऐसा कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट पे ही आएगा क्वेश्चन जो भी आएगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 खत्म कर दिया है। नेक्स्ट यस क्लास सर। में मैं आप लोगों को क्या क्या करवाने वाला हूँ सुन लो पहले। मैं आप लोगों को कराऊंगा पीरियोडिक टेबल का रिमेनिंग पार्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको ये इतना सब पूरा अच्छे से पढ़ना है। है। ठीक है, पढ़ हाँ के सर, आओ। लीव कर सकते हैं। ये सब मैं बताता हूँ बेटा। आज सर हमारा डेटा आ गया मालूम है, मैंने सब देख लिया बेटा, ये बार वो लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर डाल दिया, लास्ट टाइम नहीं था। तो मतलब आज अपना हो जाता पोर्शन, मतलब 1 लाख, फिर अपनों को सब मैं अच्छे से कर पाता, लेकिन मैं अभी पीरियोडिक और इसका बॉन्डिंग का टेस्ट कंबाइन। चलो हाँ, क्लास है, 5 टर्न मिल रहा है, सब करूंगा मैं। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, बाय 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 सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बस